Hello students, welcome back to TMI's home-based education. In the last video we had studied about factors, sorry, in that we had studied about factors, multiples and everything, and we had solved exercise first also. Now today we are going to learn about highest common factor, which is also known as HCF. So now to find out HCF मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसा कौन सा हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर होगा वो जो वो सब नंबर को डिवाइड कर सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Now to find out highest common factor there are three methods. In your textbook only two are given, prime factorization method and long division method. One more method is being there, that is division method. So we'll learn about all the three methods, and from the exercise also we'll divide some and we'll apply all the three methods to find out HCF. So first we'll learn by prime factorization method. Now the method already suggests you that prime factorization method means we have to use only prime numbers. So if you want to find out HCF of say for example 36 and 84, it can be more than 2 also, 3 or 4 it can be. So HCF of 36 and 84 we have to find out. So first 36 सेपरेटली दोनों का फाइंड आउट करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स दोनों सेपरेटली आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट विल solve 36 as the last digit is 6, it is divisible by 2, so 2 ones are 2, 3 minus 2 is 1, 1 and 6 16, 2 8s are is 16. Now again by 2, 9s are, now 9 cannot be divided by 2, it will go by 3, so 3 3s are 9, and at last 3 ones are 3. Now 84 it will go by 2, so 2 4s are is 8 and 2 2s are is 4, again by 2, so 2 2s are is 4, 2 1s are 2. Now it cannot go by 2, 2 plus 1 is 3 means it is divisible by 3, so 3 7s are and 7 1s are. Now we'll write down 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3, what we had got that we will write down. Then 84 is equal to 2 into 2 into 3 into 7. Now after doing this, पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से we had found 36 is equal to what, 2 into 2 into 3 into 3. 84 also we found that it is 2 into 2 and 3 into 7. So now to find out HCF, therefore HCF is equal to, अब दोनों में कंपेयर करना है कौन कॉमन है. सो ऊपर 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, सो एक ही बार वो 2 लेना है, मीन्स 2 इज कॉमन वन टाइम, देन 2 इज कॉमन अगेन सेकेंड टाइम, सो 2, फिर 3 भी कॉमन है दोनों में, सो इंटू 3. अभी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, जो 3 था इट हैड बिकम ऑलरेडी कॉमन, एंड 7 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, सो ये दोनों को वैसे ही छोड़ देना है. जस्ट मल्टीप्लाई 2 2s are is 4 and 4 3s are is 12. सो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 36 और 84 दोनों को डिवाइड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, एंड देन बाय दैट मेथड वी हैव टू फाइंड आउट HCF. HCF मीन्स जो दोनों में कॉमन होगा, दैट ओनली विच विल बी कॉमन इन बोथ, दैट नंबर ओनली यू विल टेक and then multiply and find out the answer. So this is your prime factorization method. Now second is
division method. Now division method means where we will take all three together, all two together, example same रखेंगे so that you will get more clear idea. HCF of 36 and 84. So प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब HCF के लिए बोले और LCM के लिए भी बोलेंगे आगे, तो ऐसे अलग अलग ही करना है. नाउ फॉर डिवीजन मेथड वी कैन टेक बोथ टुगेदर 36 एंड 84, दोनों को साथ में डिवाइड करना है. नाउ द सेम मेथड विल यूज द प्राइम नंबर ओनली, लेकिन नंबर ऐसा ढूंढना है कि जो जिससे ये दोनों डिवाइड होगा, एक नहीं दोनों डिवाइड होना चाहिए. सो लास्ट डिजिट इज 6 एंड हियर द लास्ट डिजिट इज 4, सो इट विल गो बाय 2. सो 2 18s are and 2 42s are. के दोनों को साथ में डिवाइड करना है. नाउ again by 2 because 8 and 2, so 2 9s are and 2 21s are. now 2 से possible नहीं है because it is 9 and here it is 2 plus 1, 21 means 2 plus 1 3, it is 9 means both are divisible by 3. so 3 3s are and 3 7s are. अब देखो हमको कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जिससे हम 3 और 7 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो यहाँ से हमारा डिवीजन खत्म होता है. हियर आवर डिवीजन एंड्स एंड द फाइनल थिंग व्हाट वी विल डू, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2 into 2 into 3, दैट इज इक्वल टू 12. देखो आंसर सेम आया, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया. ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थी, ये डिवीजन मेथड है. प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इन डिवीजन मेथड दोनों को साथ में लेना और दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर सके वैसे नंबर से ही उनको डिवाइड करते जाना है. और जहाँ पे ऐसा नंबर है जहाँ पे हम दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते एक नंबर से, देन वी हैव टू स्टॉप and that will be your final answer. So here also we are getting 12 and here also we are getting 12. Now let us see the third method, that is long division method. Now in long division method again the example will be same, 36 and 84. so डिवाइड ही करना है, बट हियर हाउ टू डिवाइड. छोटा कौन है 36 से 84 को डिवाइड करने का, हमेशा बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से डिवाइड करना है. नाउ 36. now here why I had done like this, because it will be in an interesting way. अब 36 है तो 36 से 84 डिवाइड होता है या नहीं. 3 विल अप्लाई, जो फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बोला था मेथड, फर्स्ट विल यूज द टेबल ऑफ 3 ओनली. हियर इट इज 8, सो 3 2s are 6 and 3 3s are is 9. so we'll check whether 36 2s are is how much. so 6 2s are 12, 3 2s are 6 plus 1 7. so it will go by 2, so it comes 72. so minus 4 minus 2 is 2, 8 minus 7 is 1. आफ्टर गेटिंग द आंसर अब क्या करना है, अब ये जो रिमाइंडर आया उससे ये 36 डिवाइड करना है. अंडरस्टूड. बाय दिस 36 बाय दिस 12 जो रिमाइंडर हमारा बचा उससे फिर ये 36 को डिवाइड करना है. सो नाउ 12 3s are is 36, so the answer comes 0. अब जब ये आंसर 0 आ जाए और जो नंबर से डिवाइड करते हुए वो आंसर 0 आया, that is your HCF. so here the HCF is what 12. अगर यहाँ पे 0 नहीं आया होता, अगर कोई नंबर आया होता तो वो नंबर से हम 12 को डिवाइड करते, फिर वापस रिमाइंडर आता तो फिर वो नंबर को रिमाइंडर से वो दूसरे नंबर को ऐड करते, लाइक दैट इट विल गो ऑन. सो दिस इज कॉल्ड अ लॉन्ग डिवीजन मेथड.
पहले क्या किया है, 84 को 36 से डिवाइड किया, 2 से, तो रिमाइंडर आया 12। अब जो रिमाइंडर आया उससे जो नंबर से हमने डिवाइड किया उसको डिवाइड करना है, 36 by 12, so we are getting the answer as 0, means our HCF is 12। अभी देखो तीनों मेथड में आंसर हमारा सेम आया, 12, 12 एंड 12। आंसर चेंज नहीं होगा, आप कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली बोला है that find the HCF by prime factorization method, then compulsory you have to follow this method only। अगर बोला है HCF, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी, अगर बोला है डिवीजन मेथड देन यू हैव टू फॉलो दिस, अगर बोला है लॉन्ग डिवीजन मेथड देन यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड टू फाइंड द HCF। So student, in this video just this much only about this three method. Now we'll apply this three method in exercise 2 question number 1 in the next video. So till then, thank you and take care.